So yesterday we had a discussion about types of signal. Today, so we are going for signal and system codes. तो कल हमने देखा था एडिशन ऑफ सिग्नल्स. Now let's start with some examples. The properties of impulse function. Let's start with this. First is, what is the value of del AT? So I can say for impulse, we know that minus infinity to infinity del t into dt is always equivalent to 1. The area under the impulse function is always equivalent to 1. So I can say the integral I, which is given by minus infinite to infinite del AT into dt can be written as, let A of t is equivalent to tau. So A into dt is equivalent to d tau. What I can say, dt is equivalent to d tau divided by A. I hope this is visible. Screen visible है सभी को? एक बार मैसेज करके, हाँ, वॉइस भी क्लियर है, फाइन. Okay. So what I can say, that I can be written as, now we have to convert the limit of, ये t का लिमिट था. Now we have to convert it into the tau. So when t is approaching to infinity, tau is also approaching to infinity. So this is minus infinite to infinite. This is del of tau into d tau by a. And we know del tau d tau is equivalent to 1 minus infinite to infinite. So I equal to 1 by a. So what ये integral का value ध्यान रखें. So what I can say? I can say the value of del AT is equivalent to 1 by a del t. So you can say this is correct. Next, what is value of, suppose I want to say what is value of del of minus AT. What is value of this? So can I say I is equivalent to minus infinite to infinite del of minus AT into dt. This integral I want to calculate. So let's say minus a into tau is equal, a into t is equivalent to tau. So you can say minus a into dt is equivalent to d tau. And what else I can say? That when t is approaching to infinity,
tau will approach to minus infinity, and when t is approaching to minus infinity, tau will approach to plus infinity. So I can say the integral will become minus 1 by a integral from infinite to infinite minus infinite del of tau into d tau. And you know, integral from a to b some function into dt is equivalent to integral from b to a some function into dt. So I can say this minus sign will come compensated by this integral. So what is value of integral? 1 by a. And what this prove? This proves that del of at is equivalent to del of minus at is equivalent to 1 by a del t. It's very basic relationship. Okay, so we know that del is a even function. What I can say, del of what we can say, del of minus t is equivalent to del t. That you can prove. और ये कौन सा function है? This is even function. Del t is even function. Okay. So let's solve some problems based on impulse function. Acha, one more important thing I say for impulse function. The product of these two quantities, let's say x of t into del of t is equivalent to x of 0, है ना? This is always true. इसे जरा देखते हैं. This is again good to know, है ना? Suppose I have x of t as some function. Let's say x of t is some function. ये कोई है फंक्शन मेरे पास x of t and this is t, and let's say I have one function which is impulse. This is impulse which is situated at t equal to 0. So when I multiply this function, when I say for t greater than 0, the product of these two number is 0 because impulse is 0 for t greater than 0 and 0 into something will be 0. For t less than 0, function will be 0 because of if the impulse is 0 for t less than 0. Only you will get product of two numbers which is this. सैंपल का t इक्वल टू 0 पे जितना वैल्यू होगा उतना फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा. सो ऐसे xt इंटू डेल टी इज x ऑफ 0. इसका वैल्यू कितना होगा? x ऑफ 0, है ना? और अगर आपको इंपल्स का एम्पलीट्यूड लिखना है देखो तो हम क्या बोल सकते हैं? डेल टी इज ए फंक्शन फॉर t equal to 0, its magnitude is infinite. For t is not equal to 0, its magnitude is 0, है ना? तो अभी हम बात करेंगे
So let's try some problem which are based on let's take the shifting property of function. Shifting property. And what shifting property says, थोड़े basic operation पढ़ लेते हैं हम, so that it says that let's say I have one function x of t. X of t is given by 0 to 1, and this is t. And suppose I am interested in this x of t minus 1, x of t plus 1, x of minus t plus 1, and x of minus t minus 1. I am interested in all related to shifting. I have all problems A, B, C, D related to shifting. So let's see how this works. So first is I am interested in x of t minus 1. What should I say? That what should be the value of t so that I can get 0? So you will say, suppose I want to draw x of t minus 1, है ना? तो करते हैं इसको. Let's okay. What I can say, what should be the value of t so that I can get x of 0. आप ये तो समझते हैं ना कि this point where you have discontinuity, this point is x of 0, and this point where you are having termination point of this function, this is x of 1, and I want x of t minus 1. So what should be the value of t so that I can get x equal to 0, x of 0, क्योंकि x of 0 ही मिलेगा ना, तो t should be 1. So what should I say? The value of t this value must be 1. If I put, and what horizontal axis represents x of t minus, vertical axis represents x of t minus 1, and horizontal axis represents t. कि अगर t का वैल्यू 1 ले लिया तो you will get x of 0, है ना? इस पॉइंट का मैपिंग करना था. Now what I can say, how we can get x of 1? So x of 1, you can obtain x of 1 by putting t equal to 2. 2 minus 1 is 1. So I will go for this. So we can say this point represents t equal to 1. This point represents t equal to 2. And this is right shifting. So x of t minus 1 is what? Right shifting of the signal. और देखो shifted axis पे भी can I say this point is what this point represents? This point represents x of 0, and this point represents x of 1. So this is the idea. This may be amplitude of the signal may be 1 or 2, we don't care. And लेकिन how to do it with without this? Let's say replace t minus 1 divided by x. ये करना है आपको. t का वैल्यू कितना आ जाएगा? x plus 1. Now you want to draw signal on this axis t.
तो देखो x का वैल्यू, इस t के लिए वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 0 रखा तो कितना आ जाएगा? When you put x equal to 0, this is 1 and this 1 will be the starting point of the signal, मतलब ये. And when you put x equal to 1, the t equal to what? 1 plus 1, which is 2, and 2 will be what? The termination point of the signal. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं. शिफ्टिंग इज वेरी बेसिक ऑपरेशन. चलो अगला देखते हैं. What I can say, the second signal is x of t plus 1. So what I can say, I am interested in x of t plus 1. Again, this is my x of t. So I can say x of t plus 1 can be given by suppose I want to draw x of t plus 1 and this is what? T. And what is your basic signal? The basic signal is this. This is x of t and this is t. So I can say the basic signal is this: 0, 1, and let's say this is 1. And how to draw this signal? So what I can say replace t plus 1 by x. So what is value of t? Value of t will be x minus 1. So we want to draw new t. This is new t. So can I say when x equal to 0, t equal to minus 1. So this is starting point. And when t equal to x equal to 1, है ना, ये जो वैल्यू है ये यहाँ रखना है. 1 minus 1 is 0. So what you can say, you will get signal from minus 1 to 0. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाउ टू गेट x of 0. ये पॉइंट x of 0 है ना, तो x of 0 कब मिल सकता है? जब t को minus 1 रखो तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें. एंड हाउ वी कैन गेट x of 1? सो t इक्वल टू 0 रखो तो आपको क्या मिल जाएगा? x of 1 मिल जाएगा. So this is left shifting. So when you are having plus, it's a left shifting. When you are having minus, it's a right shifting. नेक्स्ट इज जो अगला है मेरे पास, दैट इज माइनस टी प्लस 1. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज x of minus t plus 1. And what is your signal? The original signal is this. And this is x of t and this is t. This is 0, this is 1, and this is 1. So what I want to say, I want to draw x of minus t plus 1. So can I say x of t minus t plus 1 can be written as, how you will get x of 0? So by putting t equal to 1, you will get x of 0. है ना? And how you will get x of 1? By putting t equal to minus. Okay, so what I can say, let's go for this. We are having minus of t plus 1 equal to x. So you can say 1 minus x equal to t. और यहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. What will be the starting point? You can say
when x equal to 0, this point is a starting point, so t is equivalent to 1. And when x equal to 1, it's a 0, so you can say when x is equivalent to 1, so this is a starting point and this is termination point. So what you can say, the function will be this. Here we are drawing x of minus t plus 1 and this is t. So starting point will be t equal to 1. So can I say this will be the starting point, t equal to 1, and termination point will be t equal to 0. So I can say t equal to 0 will be the termination point. अभी तो क्या स्क्वायर शेप है तो एक जैसा दिख रहा है, अगर कोई दूसरा शेप होता तो आपको पता चल पाता. सपोज लेट्स टेक ट्रायंगुलर and last is x of minus t minus 1 है ना. How to draw this? x of t तो ये है आपके पास. So how we can draw this? Let's say minus t minus 1 is equivalent to x. So you can say minus 1 minus x equal to t. यहां से आ जाएगा आपके पास. So you can draw what is the starting point when x is equivalent to 0, the t is equivalent to minus 1. This is a starting point, and when x equal to 1, t is equivalent to minus 2. This is termination point. है ना? So you can say the function will looks like this. The function will looks like this. This is x of minus t minus 1 and this is t, and you can say no, you are having function between t equal to minus 1 to minus 2 के बीच में. So these are all four possible combination जिस जहां से आपको पूछा जा सकता है. और ध्यान रखें कि जो इसके आर्गुमेंट में जितना भी चेंज हो रहा है ये यहाँ, ये सब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, और बाहर अगर कुछ लिखा है तो वो एम्पलीट्यूड एक्सिस पे होगा. दिस इज चेंज इन एम्पलीट्यूड एक्सिस, है ना. नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स से नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन स्केलिंग ऑफ द सिग्नल. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन स्केलिंग ऑफ द सिग्नल, है ना. सिग्नल की स्केलिंग कैसे करेंगे उसको जरा देखते हैं. सपोज आई हैव दिस scaling of the, है ना, ये स्केलिंग ऑफ द सिग्नल. फाइन. प्रीवियस एग्जांपल में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ या ना बोले. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन लास्ट एग्जांपल? नो. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आई कैन से, स्केलिंग ऑफ द सिग्नल, है ना, कि सपोज मेरे पास एक सिग्नल है ऐसा. लेट्स से
this is time, this is xt, and signal looks like this. -1, this is 2. Suppose this is a signal, and I want to draw this. The first, I want to draw x of 2t. Second, I want to draw x of t by 2. Then I want to draw x of minus 2t. Then I want to draw x of minus t by 2. है ना? सारे सिग्नल हमको ड्रॉ करने हैं. तो what do we, how to draw these signals? So can I say let's start. Can I say this point is x of -1 and this point represents x of 2, है ना? And this point represents x of 0. ये 3 points हैं, correct? अब करते हैं ड्रॉ इनको. So let's take, I am taking my first suppose this is x of 2t ड्रॉ करना है मुझे. अच्छा, what should be the value of t so that I can get x of -1? t का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर t का वैल्यू अगर -1/2 हुआ तो 2 into -1/2 will gives you -1. So I should say the starting point must be, है ना, ये starting point है ना, तो starting point must be t equal to -1/2. So I can say starting point will be minus of 1/2. अच्छा, t का वैल्यू 0 रख, मुझे लाना है 0, तो t को कितना रखना पड़ेगा? 2t में t को रखना पड़ेगा 0 so that I can get 0. So this value must be equal to 0. इक्वल टू 0 चेंज नहीं हुआ. और x इक्वल टू 2 लाने के लिए t का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1. So I can say this value must be 1. Correct? So let's draw this ऐसा. Then I can say this. Then I can say this. और ये क्या हुआ? This is compression of signal, है ना? x of 2t is compressed version, है ना? कंप्रेशन, है ना, एक्सपांशन नहीं है. अगर xt एक सिग्नल है तो x of 2t is compressed version of that signal, है ना. देखो ये श्रिंक हो गया है सिग्नल. आगे देखते हैं हाउ टू गेट x of t by 2. सो नेक्स्ट फंक्शन, ये तो था आपका पहला एग्जांपल. लेट्स से दिस इज 1. हाउ टू गेट x of t by 2, उसको भी लिखते हैं. कैन आई से ओके, so I want to draw x of t by 2 and let's say this is t. कैसे ड्रॉ किया जाए इसको? I can say x of t by 2. So suppose I want to draw -1. So what should be the value of t so that what should be the value of t so that I can get -1? तो आपका जवाब होगा सर t का वैल्यू कितना कर लो आप? -2 कर लो. So I can say the starting point is -2. Then what should be the value of t to get x of 0? The value of t must be 0. Then what is the value of t so that I can get x of 2? तो x of 2 लाने के लिए t कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. So this is 4. And ये कर दिया आपने ड्रॉ.
एंड दिस इज, है ना, x ऑफ t बाई 2, और ये x बाई t2 क्या है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ द सिग्नल। xt का एक्सपांशन कितना हुआ, द एक्सपांशन ऑफ xt इज, एक्सपांशन ऑफ xt इज, एक्सपांशन ऑफ xt इज x ऑफ t बाई 2। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें। अब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और आसान तरीका देखते हैं कि सपोज आई वांट टू ड्रॉ, suppose I want to draw, this is your signal, let's say ये xt था हमारे पास -1 और ये था 1, ये 2 था, है ना। So you can say this is, ये सिग्नल है सपोज, है ना, x of t and this is t. So suppose I want to draw x of -2t, इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। तो देखो फंडामेंटल आइडिया तो वही है कि आप t का वैल्यू सिलेक्ट करोगे, t का वैल्यू अगर आपने प्लस -1/2 सिलेक्ट किया तो यू विल गेट x ऑफ t का वैल्यू अगर आपने 1/2 सिलेक्ट किया तो यू विल गेट x ऑफ t का वैल्यू अगर 1/2 सिलेक्ट किया तो आपको मिल जाएगा x ऑफ -1। लेकिन है ना, हम थोड़ा और तरीका देखते हैं कि इतना सोचना ना पड़े आपको। लेट्स से 2t is equivalent to x, so you can say t will be what, -x/2। तो what will be the starting point, this is the starting point, तो रख दे यहाँ starting point। so when you put x is equivalent to 1 -1, so t is equivalent to what, 1/2। ये हुआ इस सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट जिसको आपने x ऑफ -1 बोला था। when you put x equal to 0, t is always equivalent to 0। ये कौन सा है, मिडिल पॉइंट, जो x equal to 0 वाला पॉइंट था। and when you put x equal to 2, when you put x equal to 2, the t is equivalent to -4, t is equivalent to -4, और ये कौन सा था, एंड पॉइंट था। बस अब बना दें इसको, हो गया। दिस इज more than required information, so I can say this is x of -2t and -2 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा, ओके, दिस विल बी -2 रखा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1, दिस विल बी -1। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, t इक्वल टू 1/2, so we can start from here 1/2। फिर कहां जाना है, 0 पे जाना है, फिर कहां जाना है, यू वांट टू गो एट -1, ये एंड पॉइंट, ध्यान रखें। तो देखो फंक्शन स्टार्ट यहां से हो रहा था, तो फंक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे हम, t/2 से 0 तक कहां जाएगा, ऐसा। and then what I can say, the function will be this। और ये कितना है, x ऑफ -2t। और ये ऐसे भी आ सकता था, टाइम रिवर्सल से भी आ सकता था, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि x ऑफ 2t आपने ड्रॉ कर रखा है तो उसमें टाइम रिवर्स कर दो तो भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द फंक्शन, है ना, बड़ी आसान सी चीज है ये भी कंप्रेस्ड है, तो व्हाट आई कैन से, कंप्रेस्ड प्लस टाइम रिवर्सल, है ना, टाइम रिवर्सल प्लस कंप्रेस्ड। नेक्स्ट फंक्शन वी वांट टू ड्रॉ इज x ऑफ -t/2, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। सो दिस इज द आइडिया फॉर द फंक्शन। नाउ सपोज वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू we want to perform two operation on signal. First is shifting,
प्लस स्केलिंग। हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग एंड सेकेंड वन इज स्केलिंग। सपोज वी वांट टू परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑन सिग्नल, कैसे किया जाए इसको जरा बात करते हैं। स्केलिंग और शिफ्टिंग दो ऑपरेशन कैसे शॉर्ट परफॉर्म किए जाए। सपोज आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। सपोज आई हैव दिस, suppose the function is given by this, ठीक है, x -1 2 and this is x of t। ये कोई फंक्शन है मेरे पास। सपोज आई वांट टू ड्रॉ दिस x of 2t plus 1, x of 2t minus 1, x of minus 2t plus 1 and x of minus 2t minus 1। Suppose I want to draw this four सिग्नल है ना। तो यहाँ दो ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज स्केलिंग एंड सेकेंड वन इज शिफ्टिंग। स्केलिंग और शिफ्टिंग हमें साथ में परफॉर्म करना है। तो व्हाट टू डू? सो कैन आई से, आप कोई सा भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हैं ना। देखो कैसे, आपको पता है कि एक्स ऑफ, सबसे पहले आप एक काम कर लें, t+1 ड्रॉ कर लें। तो आपको कैसा मिलेगा t+1, है ना। देखो मैं बताता हूं कि हाउ स्टेप बाय स्टेप यू कैन थिंक। चलो तो पहले मैं कर लेता हूं x ऑफ t+1। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको कि लेट से फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू शिफ्टिंग। पहली प्रायोरिटी आपने किसको दी? शिफ्टिंग को दी, और उसके बाद स्केलिंग को देंगे, फिर उल्टा कर लेंगे उसका, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। So what I can say, the first priority is given to shifting. So how to draw x of t+1? तो आपको तो पता है कि x of t+1 कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो x of, टू ड्रॉ x of t+1, ये पूरा फंक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? द फंक्शन हैव शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फंक्शन एक यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। या उसको आप लिख सकते हैं कि t+1 इज इक्वल टू x। तो t इज इक्वल टू x -1। तो दो एक हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा। तो आई कैन से दिस इज -2, ये कौन सा कलर आ गया? दिस इज -2। देन जीरो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जीरो शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। सो दिस इज -1। और टू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टू शिफ्ट हो जाएगा 1 पे। तो दिस इज 1। तो व्हाट आई कैन से, -2 से -1 एक लाइन बना दी हमने, एंड देन वी हैव दिस शेप। ओके, x ऑफ t+1 हो गया, कोई परेशानी? दिस फंक्शन इज x ऑफ t+1। अब आप ध्यान रखें कि आपको करना है 2 यूनिट से स्केलिंग, और स्केलिंग भी कौन सा करना है? कंप्रेशन करना है। तो जिस इंस्टेंट पे आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी राइट इट, कि जिस इंस्टेंट पे आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी इंस्टेंट पे आप क्या करें? सारे पॉइंट्स को 2 से डिवाइड कर दें।
ठीक है, तो दिस इज अवर ऑपरेशन। अब ये एक्सेस कौन सा बन गया है, यू कैन से दिस इज नाउ एक्स ऑफ 2t+1, है ना। तो दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज -1/2 एंड दिस पॉइंट इज 1/2। तो आपने कौन कौन सा ऑपरेशन किया है, द फर्स्ट ऑपरेशन इज स्केलिंग, which operation you are performing, the first operation you are doing is which signal is scaling, देन आपने किया है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट, फिर से बताया जाए, कोई कंफ्यूजन इसमें। नो, ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसको उल्टा कर लेते हैं थोड़ा, और आप ध्यान रखें कि जितने भी ऑपरेशन होंगे ना वो केवल इस वेरिएबल टी के साथ ही होते हैं और किसी के साथ नहीं होता ऑपरेशन, है ना, इस बात का ध्यान रखें आप। सपोज आई वांट टू ड्रॉ द सेम सिग्नल, लेकिन पहले अब मैं उल्टा करना चाहता हूं। व्हाट आई वांट टू डू, पहले मैं परफॉर्म करना चाहता हूं स्केलिंग, है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही पहले मैं परफॉर्म करना चाहता हूं स्केलिंग, and second operation I want to perform is shifting. And what I can say, what is available to you, the available function is this, है ना, t, this is x of t, this is -1, this is 2, so you can say, and the second one is this. ये मेरे पास सिग्नल है। सपोज आई वांट टू ड्रॉ x ऑफ 2t+1, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि नाउ यू वांट टू फर्स्ट स्केल द फंक्शन, तो चलो पहले स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, स्केलिंग तो बड़ा ही आसान है ना, कि लेट्स टेक दिस, पहले मैं कर लेता हूं स्केलिंग, तो ये t हो जाएगा और स्केलिंग कितना हो जाएगा, x ऑफ 2t। चलो, तो x ऑफ 2t ड्रॉ किया तो कितना हो जाएगा, सारे पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो यू कैन से what you can say, this point is -1/2, और ये पॉइंट भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, लेट्स से ये पॉइंट आ जाएगा 1, और 0 भी 2 से डिवाइड होगा तो 0 विल बी न्यू 0, तो हम बना लेते हैं इसको, यू कैन से ये बन गया मेरे पास स्केल्ड फंक्शन, है ना। ये आपने कंप्रेस्ड वर्जन बना दिया x ऑफ 2t+1, लेकिन अब ध्यान रखें आपको क्या करना है, x ऑफ 2t+1 की रिक्वायरमेंट है ना, तो x ऑफ 2t+1 लाने के लिए आपको t को कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देखें आप कि जितना भी ऑपरेशन है आई विल परफॉर्म ऑन t, सो x ऑफ 2 बाहर ले लें, t को कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट x ऑफ t+1, तो आपको क्या पता चलेगा कि t को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा t+1/2 से। तो आप ध्यान रखें शिफ्टिंग हमेशा t में होगी ना कि 2t में होगी,
तो t प्लस 1/2 से शिफ्ट करेंगे तो मामला बन जाएगा। तो अब क्या करें, आपके पास जो स्केल्ड फंक्शन है उसको प्लस 1/2 से शिफ्ट कर दें। तो प्लस 1/2 से शिफ्ट करना मतलब क्या, प्लस 1/2 से शिफ्ट करना मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन लेफ्ट शिफ्टिंग, मतलब फंक्शन को किस तरफ खिसकाना चाहते हैं आप, इस डायरेक्शन में। कितनी यूनिट से, यू वांट टू शिफ्ट दिस फंक्शन 1/2 यूनिट। तो 1/2 यूनिट से अगर मैंने फंक्शन को शिफ्ट किया तो व्हाट आई कैन से this will be -1/2, this will be -1/2, और ये पॉइंट भी -1/2 से शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि दिस इज 1/2, 0 माइनस माइनस 1/2 इज 1 माइनस 1/2। ओके, दिस 1/2, दिस इज ओके, दोनों को एड ही करना है ना। दिस इज -1/2 और ये कितना हो जाएगा, -1। सभी को ऐड करना है, ध्यान है ना, माइनस साइन पहले ही लगा दिया हमने। तो अब नया फंक्शन आपका बन गया कि भाई जो पॉइंट आपको 1 पे मिल रहा था उसको आप 1/2 पे बना दे। तो व्हाट आई कैन से, लेट्स से दिस इज योर फंक्शन, सपोज ये आपका फंक्शन है। तो व्हाट यू कैन से, लेट्स से दिस इज t एंड दिस इज x of 2t plus 1. So this point will be 1/2. So can I say this point is 1/2? Then one more point is -1/2. Then this is -1. So what I can say, ऐसा बन जाएगा, and from this point to this point ऐसा बन जाएगा, है ना। कंप्रेस हो गया लेकिन मैंने ठीक है थोड़ा उसको एक्सपांशन में बना दिया, बट दिस इज द करेक्ट। मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैंने सिग्नल बनाया है, दिस, जिसको मैं लगा देता हूं ये सिग्नल, और है ना, जब जब आपने पहले स्केलिंग किया है फिर शिफ्टिंग किया है, और विच सिग्नल, दिस सिग्नल, ये सिग्नल जब आपने पहले दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ये दोनों सेम है। देखो इसको भी आप देख लो, व्हाट आई कैन से, लेट्स लुक एट दिस सिग्नल, दिस टू सिग्नल्स आर सेम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। पहले स्केलिंग भी ठीक है, पहले शिफ्टिंग भी ठीक है, जो आपको समझ में आए वो ऑपरेशन पहले ठीक है। क्या इस बात से किसी को कोई परेशानी, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन, नो। चलो आगे करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि इस स्केलिंग और शिफ्टिंग वाले पार्ट में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सपोज विच सिग्नल यू आर हैविंग, I want to say you are having this signal, which is, suppose you are having this signal. कितना था ये था एक -1, ये था एक, ओके, ये आपके पास कोई सिग्नल है सपोज,
ओके, ये कोई सिग्नल है सपोज आपके पास, है ना, पुराना वाले सिग्नल लिया है, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 2, ये x ऑफ t है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पहले स्केलिंग किया जाए या पहले शिफ्टिंग किया जाए, जस्ट गो बाय दिस, x ऑफ 2t प्लस 1, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, सो वेरी सिंपल, एक 2t प्लस 1 इक्वल टू x, so t will be what, x minus 1 divided by 2, and this is your option, this is your answer actually. What you can say, starting point of this x, this is starting point, this is middle point, and this is termination point. Just put this 3 point and you will get answer. So what is starting point? T starting point can be written as when x is equivalent to -1. So -1 -1 2t plus 1, so this is x minus 1. Okay, what I can say, this is x minus, नहीं तो confusion होगा, x minus 1 divided by 2, ये है. So when you put x equal to -1, this is -1 -1, -2 divided by 2 is -1, तो इसका starting point हुआ -1. Middle point, you can say middle point is point where t equal x equal to 0. So if x equal to 0, it's a minus of 1 by 2. And last is termination point. What you can say, termination point is x equal to 2. So 2 minus 1 is 1, 1 by 2. और देखो ये उसी पॉइंट पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना. So what will be the new coordinates for the system? I can say, suppose this is x of 2t plus 1. If this is x of 2t plus 1, this point will be 1 by 2. This point will be minus 1 by 2, and this point will be, okay, starting point is -1. Acha, starting point is, this is starting point, -1. हाँ ठीक है, सो फाइन, पहले भी यही हुआ था ना. यस, देखो, है ना, टर्मिनेशन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सभी को हमने ड्रॉ कर लिया और ये ऐसा मिलेगा. सो आई डोंट थिंक कि कोई परेशानी है इसमें. तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं. इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? इस पॉइंट से आगे बढ़ा जाए क्या? यस, चलो. तो क्या सर ये लास्ट वाला मेथड मतलब हर एक सिग्नल के लिए वैलिड रहेगा ना? एवरी सिग्नल मींस किसी भी टाइप का रहेगा, चाहे स्केलिंग करो चाहे शिफ्टिंग कुछ करो, भी ये कुछ अलग? भी कुछ भी कुछ भी. यस, ओके सर. है ना, तो जैसे है ना, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स से बचे हुए फंक्शन आप एक बार ट्राई करके देखें ये सारे. व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज योर फंक्शन इज दिस, है ना, फंक्शन जो था हमारा वो कैसा था, यू कैन से -1 and 2. So you can say this is x of t. ठीक है, this is t, and what I want to draw all its variant, x of 2t plus 1, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया है ना, इसको हटा देते हैं आप. नाउ वी वांट टू ड्रॉ 3 फंक्शंस. फर्स्ट इज x of 2t minus 1, b is x of minus 2t plus 1, and c is x of -2t minus 1. तो चलो पहला वाला ड्रॉ करते हैं, है ना. तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2t minus 1
is equivalent to x. So what will be the value of t? It's x plus 1 divided by 2. ये आपका फंक्शन बन गया है ना. Just draw this, you will get the output. So what I can say, फर्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना. चलो स्टार्टिंग पॉइंट t को रखा आपने -1, सो आई कैन से -1 + 1 0, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, सो दिस इज 0. देन व्हाट आई कैन से, t को रखा आपने 0, दिस विल बी द 1, है ना. t x को रखा आपने 2, तो 2 + 1 इज 3/2, सो दिस इज 3/2. तो दिस विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. And what I can say, this function is x of 2t minus 1. ठीक है. What is next function? Next function is -2t plus 1 is equivalent to x. So you can say 1 minus x divided by 2 is equivalent to t. ठीक है. 1 minus x, ये 2t के इक्वल हो जाएगा, तो t का वैल्यू इतना आ गया. तो नाउ यू कैन हैव द सेकेंड फंक्शन ऑल्सो. क्या लिख दूं मैं सेकेंड फंक्शन को? यू कैन ड्रॉ दिस. You can say this is t and this is x of -2t plus 1. चलो स्टार्टिंग पॉइंट x का वैल्यू रखा -1, तो कितना हो जाएगा? 1 minus -1 is 2, 2 divided by 2 is 1. तो फंक्शन स्टार्ट यहां से होगा, ध्यान रखें. फिर x का वैल्यू 0 रखा तो कहां जाएगा? 1/2 पे जाएगा, तो ये 1/2 पे गया. फिर x का वैल्यू रखा आपने 2, तो 1 minus 2 is what? -1/2, तो ये कहां जाएगा? -1/2 पे. तो फंक्शन स्टार्ट यहां से होगा, तो यहां से इन दोनों के बीच में क्या होगा? यू कुड हैव वन लाइन. करेक्ट. देन, है ना, दिस इज x of -2t plus 1. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट फंक्शन इज -2t minus 1 is equivalent to x. So you can say -2t plus 1 equal to -x. So t equal to -x minus 1 divided by 2. ये हो गया आपका फंक्शन. So you can say, you can draw your function like this, है ना. इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट इज x इक्वल टू -1, तो -1 रखा, तो ये 1 minus 1 is 0. तो फंक्शन स्टार्ट कहां से होगा? फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, इट्स -1/2. तो 0 से -1/2 के बीच में क्या कर दें आप? एक ऐसा लाइन बना दें. फिर व्हेन यू पुट x इक्वल टू 2, सो -2 minus 1 is -3/2, तो ये आ जाएगा minus of 3/2. So this is the idea for the function. क्या ये क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर है. चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए सिग्नल, है ना. आप किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो देखते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट वन सिग्नल. हाउ टू इंटीग्रेट द सिग्नल्स, है ना. सिग्नल को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, जरा देखते हैं. इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द
कि suppose what we have, okay, suppose integration of the signal. We are interested in integration. Next is operation on signals में जो अगला point है, that point is integration of the signals. Integration of the signals. है ना? The next point is integration of the signals. कैसे किया जाए जरा देखें कि suppose you have this, अगर आपके पास कोई फंक्शन है ऐसा, let's say है ना, this is t, this is x of t, and you are having this is let's say 1, this is let's say 2, है ना? इसका मुझे इंटीग्रेशन बनाना है। तो आपको पता है व्हाट इज हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स ड्रॉ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ड्रॉ करते हैं हम, तो लेट्स टेक आप बोलोगे इंटीग्रेशन ड्रॉ करना है, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल कि 0 से 2 के बीच में फंक्शन कितना है, 0 से 2 के बीच में फंक्शन है 1, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू माइनस इनफाइनाइट टू t xt इंटू dt। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू है 1, तो यू विल से इट्स लिमिट फ्रॉम 0 टू t, है ना? फंक्शन ड्रॉ करना है तो मुझे t लिखना पड़ेगा, और इस ड्यूरेशन में फंक्शन का वैल्यू है 1 इंटू dt, और t की लिमिट कहां से कहां तक जाती है, t कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 2, यू कैन से दिस फंक्शन इज हैविंग वैल्यू t। तो ठीक है, t मीन्स व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं बना देता हूं स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये बना दिया मैंने, ठीक है। एंड व्हाट शुड आई से दैट द वैल्यू एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो यू कैन से दिस वैल्यू विल बी, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहले कैन आई से इंटीग्रेशन में हमेशा इनिशियल कंडीशन आपको देखना होती है। अच्छा, इसके बाद देखें कि इसके बाद इंटीग्रल का वैल्यू कितना है, 0, और इसके बाद वैल्यू कितना है, 0। लेकिन अगर मैं 0 का इंटीग्रल करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज c, और c मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन। इसका इनिशियल कंडीशन कितना है, 2। तो आपको क्या समझ में आया कि हाउ वी विल ड्रॉ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर आपको ड्रॉ करना है इंटीग्रेशन तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं इसका सिग्नल की पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बताता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एडिंग एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व का एरिया आप ऐड करते जाएं तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 0 से 2 तक इसका एरिया कितना है, 0 से 2 तक। जैसे आपने बोला कि सर मुझे इस पॉइंट का एरिया चाहिए, तो इस पॉइंट का एरिया लेट्स से ये कितना था,
1/2 था। तो आप क्या करें, 1 इंटू 1/2 ये पॉइंट यहां ड्रॉ कर दें। आप एरिया ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट यू आर ड्रॉइंग ऑन वर्टिकल एक्सिस, यू आर ड्रॉइंग दिस माइनस इनफाइनाइट टू टी एक्स टी इंटू डी टी। सो वर्टिकल एक्सिस पे आप एक एरिया ड्रॉ कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 0 से 2 तक तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, जो आपने बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं 2 के बाद इसका एरिया कितना है, तो आप जोड़ते जाओ। यहां तक का एरिया 2 है, द एरिया टिल दिस पॉइंट इज 2 प्लस यहां का एरिया कितना है, कि विड्थ तो है, हाइट नहीं है, तो एरिया 0, फिर आगे का एरिया 0, फिर आगे का एरिया 0। तो उसके बाद ये फंक्शन कहां फिक्स हो जाएगा, 1 पे फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें ये इंटीग्रेशन 0 पे नहीं आता। आप एरिया ड्रॉ कर रहे हैं तो एरिया 0 थोड़ी ना हो सकता किसी भी इंस्टेंट पे। सो दिस इज द आइडिया। कोई पूछता है कि t इक्वल टू 4 तक का एरिया कितना हुआ, तो आप बोलोगे t इक्वल टू 4 तक का एरिया भी 2 है, 3 तक का भी 2 है, 2 तक का भी 2 है, और अगर कोई 1 तक का पूछ लेता है तो वो एरिया 1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इंटीग्रेशन, है ना। तो ध्यान रखें ये पॉइंट को, है ना, 0 नहीं लाना कि इसके पास इंटीग्रेशन 0 तो 0 कर दिया, नहीं। इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग द प्रीवियस एरिया, और प्रीवियस एरिया को एड करोगे तो कैसा बन जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेट्स से आई हैव दिस फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आई हैव दिस फंक्शन, this is t, this is x of t, ठीक है। एंड ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, this is let's say 1, this is 2, this is 3, this is +1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, +1, और ये कितना है, -1। सपोज आई वांट टू ड्रॉ द इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ड्रॉ करना है मुझे। कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखिए। To draw the integration of this function, how I will proceed, I will go like this, कि सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं xy, ये बना लिया भैया हमने xy, this is t-axis, this is minus infinity to t xt dt, परेशानी नहीं इसमें। तो एक बात समझें आप कि हम इंटीग्रेशन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट में एरिया ही ड्रॉ कर रहा हूं फंक्शन का। तो कैसे किया जाए, तो देखते हैं कि करने के लिए हम लेते हैं इसका प्रोजेक्शन, सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। Then we are having this, then we are having this, है ना। इंटीग्रेट एडिंग द प्रीवियस एरिया, दिस मीन्स इंटीग्रेशन। दिस इज 1, 2 एंड 3। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक लाइन होती है, और देखते हैं जरा कैसे बनेगा ये, है ना। विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन फाइंड एवरी पॉइंट। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप जोड़ें इसको, है ना। व्हाट आई कैन से, 0 से 1 इंटरवल के बीच में कोई एरिया है क्या, नहीं, तो उसको कितना ले लेंगे हम, इट्स 0। फिर देखें 2 पे, अगर मैं बात करूं 2 पे, तो 2 पे एरिया कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2, एरिया विल बी 2 इन -1, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना, 2 - 1 एंड 1,
2 माइनस 1 एंड 1 कितना होता है? 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1। आप इंटीग्रेशन करके देख लो, यू विल गेट द सेम आइडिया। और t इक्वल टू 3 पे एरिया कितना हो जाएगा इसका? कि भाई इसका जो एरिया है फर्स्ट हाफ का, इसको मैं a1 लिखता हूं, तो a1 का एरिया कितना आया? 1 आया। और सेकेंड हाफ का एरिया लिखता हूं तो आपको क्या समझ में आया? कि विड्थ तो है 3 माइनस 2, बट हाइट इज माइनस 1, तो एरिया कितना आया? a2 इक्वल टू माइनस 1। जब भी आगे का एरिया लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पीछे का एरिया ऐड करना है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2? द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर दूंगा कि इस पॉइंट पे वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 0 कर दो, लाइन ड्रॉ। This is integration. No equation is required. ठीक है। अब कोई बोलता है कि बताओ t इक्वल टू 4 पे एरिया कितना होगा? अरे 0 होगा। 0 होगा तो हमने 0 लिख दिया उसका। तो व्हाट आई कैन से, बियॉन्ड दिस द एरिया विल बी 0। ये क्या ड्रॉ किया है हमने? इंटीग्रेशन ड्रॉ किया है। तो आप, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन कितना होगा, लेट्स से t इक्वल टू 2.5 पे, तो आप कुछ नहीं करना, 2.5 पे इसका वैल्यू बता दो, दैट विल बी द आंसर। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कोई परेशानी? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन है? नो, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर दिस। व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव दिस फंक्शन, let's say this is x of t, this is t, and hmm, hmm, ओके। ये मेरे पास सपोज कोई फंक्शन है, दिस इज 1, this is suppose 1, 2, this is 4, this is minus 2, and this is plus 1. I am interested in this integration of minus infinite to t xt dt। एक बार ट्राई करें आप इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं बताता हूं। ट्राई दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी।
हो गया? Okay. So what I can say, let's try this question again. We can draw this very easily. Let's say this is x, this is I, integration. And in this axis, I want to draw t. So what I can say, let's take projection. Okay. This is the point. Another point. This is one more point. This point is, let's say 1. This point is 1. This point is 2. This point is 4. तो क्या देखा हमने कि 0 से 1 के बीच में या माइनस इंफिनिटी से 0 तक तो कोई एरिया है नहीं, सो आई कैन मेक दिस एज 0. फिर t इक्वल टू 2 पे एरिया कितना हो जाएगा, है ना? आपको ऐसा लगे कि यार t इक्वल टू 0 पे तो मेरे पास ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे, है ना? ये ट्रांजिशन दिख रहा है, तो ऐसा ना सोचें आप 2 0 माइनस से ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कितना हो जाएगा एरिया? 1 into 1 is 1. और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लाइन होता है, तो यहां लिख दूंगा मैं कितना? 1. सो दिस इज 1. एक पॉइंट ये हो गया. फिर आपने क्या देखा कि t इक्वल टू 4 पे एरिया. सो कैन आई से, if I say this area is A1, then value of A1 is what? The value of A1 is equivalent to 1. And what is value of A2? तो आप बोलोगे A2 भी एक रेक्टेंगल है और इसका विड्थ है 2 एंड हाइट इज इक्विवेलेंट टू -2. तो कितना हो जाएगा? A2 इज इक्विवेलेंट टू -4. तो आप क्या बोलेंगे कि A1 प्लस A2 इज इक्विवेलेंट टू 1 minus 4, and 1 minus 4 is -3. So what I will say कि, है ना, what should I say कि at t equal to 4 the area will be -3, है ना? Let's say this point is -3. इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं. This point is, let's say, -3. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? You will say okay. So how we will proceed? We will proceed like this. Correct. Area is equivalent to 1. Then for next, this is -3, है ना? तो -3 कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज -3. आपकी जो इक्वेशन है उनसे आप निकाल के देख सकते हैं ना. यू कैन वेरीफाई ऑल दिस थिंग. और इसके बाद एरिया कितना है? 0. तो -3 में 0 0 8 करते जाओगे तो यू विल गेट -3 ओनली. सो दिस विल बी द एरिया, है ना? ये बन जाएगा आपका एरिया. थोड़ा और डार्क कर देता हूं मैं. जो रेट से बना है ये क्या है? दिस इज द एरिया ऑफ वो फंक्शन. किसी भी पॉइंट वाइज एरिया दे देगा ये. And this curve represents what? This curve represents the integration of -infinite to t xt into dt. ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत?
नो, चलो आगे देखते हैं. Let's take one more function and let's take one more function and draw area of this function. Let's say I have this function. Okay, so what I am saying, okay, ठीक है. आपके लिए है ये, आप ड्रॉ करेंगे फिर मैं ड्रॉ करूंगा. x of t and this is t, है ना. One function is, let's say, है ना, e to the power minus 2t into ut, and one more function is e to the power, okay, e to the power 2t into u of t, e to the power 2t into u of minus t. Suppose this is my function and what I want to draw, है ना. अगर मैं आपसे ये बोलता कि इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन बता दो तो शायद आप बता भी देते कि आंसर 1 आएगा, है ना. क्योंकि बेसिक, बट हाउ टू ड्रॉ दिस, द आइडिया इज how to draw this integration. So what I want, I want this, I want integral which is minus infinite to t xt dt. I want the value of this integration. जरा करके बताएं इसको. इसको करके बताएं आप, है ना. What I want to draw here, I want to draw I with respect to E. Just draw this.
ओके, देखते हैं। सो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं कोई इसके पॉइंट ड्रॉ करूं तो कैन आई से एट टी इक्वल टू, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे एरिया कितना था इसका? 0 था। अच्छा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू 0 ई टू दी पावर 2t इंटू डी टी। आप कितना बोलोगे? दिस इज इक्वलेंट टू 1/2 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। तो आप ये बात समझ जाए कि t इक्वल टू 0 पे एरिया कितना हो गया इसका? 1/2। और ई टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन भी कितना होता है? ई टू द पावर 2t/2। सो यू कैन से एट दिस पॉइंट एरिया इज इक्वलेंट टू 1/2। 1/2। तो मैं देख लेता हूं इसका एरिया कितना हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ फंक्शन हियर। दिस इज 1/2। फिर क्या देखा हमने कि ओके, यहां तक तो एरिया बढ़ेगा, देखो है ना व्हाट आई एम सेइंग, कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हो एरिया भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो स्लोप है एरिया का, ये आगे जाते जाते और क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट का एरिया कितना हुआ? इस पॉइंट तक एरिया 1/2। लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में आते हैं एरिया कम नहीं होता, एरिया बढ़ता है ना? तो ये और बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस एरिया के इंक्रीज होने की रेट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आगे जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एंड कितने पे कांस्टेंट होगा? दिस विल बी द कांस्टेंट एट 1। तो है ना, एक बार गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ध्यान रखें ये एरिया नेगेटिव नहीं है, ये भी बढ़ ही रहा है एरिया। आप एरिया ऐड करते जाएंगे तो एरिया इंक्रीज होता जाएगा। और सिमेट्रिकल फंक्शन है। अगर इस हाफ का एरिया 1/2 है तो आप समझ जाए कि इसका भी कितना होगा? 1/2। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे एरिया कितना मिल जाएगा? 1। क्या इस बात में कोई परेशानी है किसी को? कोई दिक्कत? सर मेरे को A1+A2 जब हम लोग लिखते हैं वो वाला पार्ट नहीं समझ रहा। मतलब उधर पे -3 आया था, बट जब ग्राफ से देख रहा था तो मेरे को समझ नहीं रहा था। क्या 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 -3 का इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेरे को A1+A2 के आगे नहीं समझ रहा, मतलब क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर हैविंग t इक्वल टू इनफाइनाइट, करेक्ट? यस सर। ये कोई पॉइंट है वेयर यू आर हैविंग t इक्वल टू इनफाइनाइट। यस सर। तो मुझे बताओ इनफाइनाइट पे एरिया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एरिया ऑफ दिस। अच्छा। हाँ, आप ध्यान रखें कि एरिया क्या करते हैं। किसी भी पॉइंट का एरिया अगर आपको बताना है तो देखो बेसिक आइडिया करते हैं आप वो भी वही हो, बस मैंने उसको बोल दिया है कि मैंने बोला कि t इक्वल टू 1 तक का एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे? इस सारे पूरे प्रीवियस का एरिया बता दोगे, ऐड कर करेक्ट? देंगे, यस सर, हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि बताओ यहां तक का एरिया बताओ, तो इस पूरे एरिया को आप ऐड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर, करेंगे। तो बस अब मुझे बताओ कि इसके बाद अगर एरिया कितना ऐड हो रहा है? 0 0 0 ऐड हो रहा है, तो इसमें अगर 0 0 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा सर। करेक्ट है? यस सर, यस सर। समझा चलो, अभी। let's take one more problem, and the problem is this. Let's say we are having this. Let's say I have one bell shaped curve, है ना? This is xt and this is t. This is bell shaped curve. क्या लगता है इसके एरिया का ग्राफ कैसा बनेगा?
how we will draw this? What I can say that we will start from this point. इस point से पहले का area पूरा 0 है. So you can say, okay. So this is 0. Beyond that it will increase. इंक्रीज होने का रेट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है ना. So this is idea. This is what? This is the integration of minus infinite to t xt into dt, है ना. ध्यान रखें इसको. आई होप दिस इज क्लियर. कोई परेशानी है इसमें? हेलो, इज देयर एनी डाउट? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड लास्ट एग्जांपल ऑन इंटीग्रेशन इज दिस, है ना. काम की चीज है ये, आपको सिग्नल का इंटीग्रेशन पूछा भी जाता है. सपोज आई वांट टू ड्रॉ द इंटीग्रेशन फॉर दिस फंक्शन. लेट्स से this is the function. Okay, this is 0, this is 1, this is okay. थोड़ा और इसको कर देता हूं मैं. This is 1/2. Yeah, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This value is 1, this value is -1. This is x of t, and what I want to draw? I want to draw integration of this. I want to draw integration of minus infinite to t xt into dt. What will be the integration of this? Correct, try एक बार. देखो है ना, how to approach this problem. Let's see how we will approach this. What I can say, okay.
This is my, let's take projection 1. This is point 1. This is point 2. This is point 3. This is point 4. What we are drawing on y-axis, we are drawing integration, and on x-axis we are drawing t. So this is 1, 2, 3, and 4. You know what is equation of this line? This is the t kind of line, y equal to mx into c, straight line, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर कुछ बनेगा. What I am saying कि आपको इस इक्वेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है. आप यहां तक का एरिया मार्क करें. यहां तक का एरिया कितना होगा तो आप बोलेंगे दिस इज 1/2, बेस इज 1, हाइट इज 1. तो यहां तक का एरिया t इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना है इसका? द वैल्यू एट t इक्वल टू 1 इज 1/2. लेट्स से मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, इट्स 1/2. व्हाट इज वैल्यू एट t इक्वल टू 2? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो इसका बेस हुआ 2 यूनिट, हाइट हुआ 1 यूनिट एंड 1/2. तो यहां तक का एरिया कितना हुआ इसका? इट्स 1. फिर यहां तक का एरिया देखें कि 1 में से इस पूरे का एरिया 1 है और आगे का ये एरिया हाफ कर दिया आपने माइनस, तो कितना हो गया? 1 माइनस हाफ इज अगेन 1 माइनस हाफ इज अगेन व्हाट? हाफ. और यहां तक का एरिया भी अगर आपने ऐड कर दिया तो ये इस पूरे का एरिया था a1 इक्वल टू 1. इस पूरे का एरिया था a2 इक्वल टू -1. सो यू नो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0. लेकिन कहा t इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगा 0. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन? द आंसर फॉर योर क्वेश्चन विल बी दिस. है ना कि ये t इक्वल टू 1 पे एरिया कितना है? द एरिया एट t इक्वल टू 1 इज 1/2. यहां तक का एरिया कितना है? दिस एरिया इज 1. फाइन. और उसके बाद कितना हो जाएगा? दिस एरिया विल बी 0. बताओ कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट. सो दिस इज फाइन. Let's move to the last part of this. Ki suppose I have this curve. Okay. This is x of t and this is t, and the function is looks like this. And this is going up to infinity. I am interested in I, and what I represents? I represents minus infinite to t integration of xt into dt. इसको बनाए. This is the last from integration. Then we will start the differentiation of signals.
अरे तो पहले से बोल रहे थे कि 70 भाई बोले फोन नहीं किया मैंने भी आज पूछ रहा था तो मजाक में है देखते जिससे कैसे देखते बातें हो गया इज इट क्लियर ओके हो गया तो मैं ड्रॉ करके बताता हूं इसको हाउ वी कैन राइट दिस कि लेट्स से दिस इज द शेप है ना एंड लेट्स टेक प्रोजेक्शन तो ये ले लिया हमने प्रोजेक्शन क्या ड्रॉ कर रहे हो आप यू आर ड्रॉइंग द इंटीग्रेशन ऑन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस एंड t at horizontal axis so what I can say let's say what is let's say this is a1 so what is the area of a1 area is 1 then a2 का area हुआ 0 then a3 is equivalent to 1 then a4 is equivalent to 0 then a5 is equivalent to 1 and this goes on. So what is area between 0 and 1 and this I can say a0 equal to 0 इन दोनों के बीच का एरिया हुआ 0 देन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है तो यहां मैं 1 ड्रॉ कर देता हूं सो दिस विल बी द 1 फिर 1 में 0 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 1 फिर एक एरिया और ऐड किया तो ये मार्क कर देता हूं मैं 2 तो ये कहां पहुंच जाएगा 2 फिर अगला एरिया कितना 0 फिर अगला एरिया कितना 3 फिर कैसा स्ट्रेट लाइन फिर इंक्रीज फिर स्ट्रेट लाइन फिर इंक्रीज फिर स्ट्रेट लाइन क्या ये आपको समझ में आया कि ये क्या बताता है कि है ना प्रीवियस एरिया का एडिशन बताते जाएगा ये हाँ जी क्या ये आपको समझ में आया क्लियर है ना सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स और हमने देखा स्केलिंग और स्केलिंग एंड शिफ्टिंग द नेक्स्ट आइडिया इज डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल है ना कि डिफरेंशिएट कैसे करें द आइडिया ऑफ
idea of having yt which is dy dt of xt. How to perform this task, है ना? जैसे मैंने बोला आपसे कि लेट से आई हैव वन फंक्शन विच इज गिवन बाय दिस, okay, which is given by this is x, x means t, this is x of t, and what I am saying, let's I want to draw the integration of this. Not integration, I am interested in differentiation of this function. इसका differentiation कितना होगा? Let's say ये है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू 2. तो आप क्या करेंगे? आपको डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन का लिखना है तो थिंग्स आर वेरी सिंपल. क्या करेंगे आप? So on horizontal axis we are drawing t, on vertical axis we are drawing d by dt of xt. This is the idea. And let's take projection. So this is projection. इस लाइन का इक्वेशन कितना है? यू कैन से द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y2 minus y1 x2 minus x1 पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है? t. और इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? माइनस टी प्लस 2. अरे वन इंटरवल में एक चलता है ना, तो आपको जीरो इंटरसेक्शन निकालना है तो कहां पहुंच जाएगा? 2 पे पहुंच जाएगा. या आई डोंट केयर, ये कोई सपोज आई डोंट केयर फॉर दिस 2. लेट्स से दिस इज सम कांस्टेंट c. इन दोनों लाइन के इक्वेशन आ गए. मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप ये समझे कि इसका स्लोप कितना है? 1 और इस लाइन का स्लोप कितना है? -1. तो आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ द स्लोप. जब भी आपको डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना हो, क्या ड्रॉ करोगे आप? स्लोप. तो इसका स्लोप कितना हुआ? y2 minus y1 1 minus 0. लेट्स से दिस पॉइंट इज 1. x2 minus x1 1 minus 0. तो केवल आप स्लोप ड्रॉ कर दे. तो आपने स्लोप ड्रॉ किया तो कितना आ गया? दिस इज 1. एंड यहां भी स्लोप कितना है इसका? y2 minus y1 x2 minus x1 minus 1. तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. तो मुझे जब भी डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना होगा, व्हाट इज द आइडिया? जस्ट ड्रॉ द स्लोप ऑफ द फंक्शन. स्लोप ड्रॉ करें बस आप. और ये फंक्शन तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस फंक्शन में तो कोई परेशानी होती नहीं है डिफरेंशिएशन में. सो दिस इज आइडिया हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन. फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का आइडिया क्या है? क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ yt, तो yt का कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट ड्रॉ द स्लोप. क्योंकि कांस्टेंट तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. आपको क्या ड्रॉ करना है? स्लोप ड्रॉ करना है. क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या ये आपको समझ में आया? ओके, ठीक है. कल हम देखेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल और बात करेंगे द टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, इवन ऑड, एनर्जी, पावर, उनके बारे में बात करेंगे. तो कल क्लास रख ली जाए ना? ब्रेक मतलब फ्री है 9 बजे? एक बार बता दें अगर आप फ्री हैं तो वी कैन हैव क्लास टुमारो ऑल्सो. अब रेगुलर रख सकते हैं हम, मतलब ऐसा है. कल आप फ्री हैं या कल आप क्लास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? प्लीज एक बार बता दें. यस, चलो ठीक है. एक ने आकाश मिश्रा जी यस, बाकी लोग भी बताएं भाई.
ओके, आकाश मिश्रा, वैष्णवी यादव, यस, चलो ठीक है। सो है रेडी लोग, तो कल हम 9 से 11 फिर मिलते हैं और कल क्लास करते हैं। थैंक यू वेरी मच।